Commerce by Anup sir. In today's topic, we are going to discuss incentive payments and fringe benefits. Incentive payments and fringe benefit. In our earlier video, we were talking about the compensation, means what we are giving to the employees in return of his or her services. In the same manner, in the same way, we are going to discuss incentive payments. In earlier video, we also have discussed that what is incentive. Incentive is payment by result. Incentive is payment by result. मीन्स आप अच्छा रिजल्ट देंगे, आपको अच्छी पेमेंट मिल जाएगी. आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका बोनस जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा. तो इंसेंटिव पेमेंट इज पेमेंट बाय रिजल्ट and it is also defined as variable pay according to the results. मीन्स जैसा आप रिजल्ट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको पे कर देंगे. तो इंसेंटिव्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सैलरी. मीन्स these depend upon your performance. बेसिक सैलरी रहेगी लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको इंसेंटिव मिलेगा. कॉमन लैंग्वेज में कई बार लोग इसको बोनस भी बोलते हैं. कॉमन लैंग्वेज में कई बार इसको लोग बोनस भी बोलते हैं कि बोनस जो है क्या है. बोनस मीन्स हमने काम किया, हमने टारगेट अचीव किया तो हमें क्या मिला. तो सिंपली इंसेंटिव्स आर पेमेंट बाय रिजल्ट्स. Incentive are most common part of the salary. These are most important part of the salary. Why incentives are important? What is the importance of incentive payment? First and foremost importance is that they are used for motivating the workers. They are used for motivating the workers. Means if you are showing them that if you will show that you give a good result, we will pay you this. Obviously monetary value जो होती है किसी चीज की वो employees को motivate करती है. तो primary advantage of this is to motivate the workers. And second, it help in the reduced supervisions. Means workers are conscious about the results, so they will perform better and they don't need more time of supervision. They will work good if there is incentive in terms of their performance. So why we need incentive? First, for motivation. Second, it reduce supervision. Second, it reduced supervision. ये supervision को जो है reduce करता है. Clear? And what are the but everything have some disadvantage too. What are the disadvantages of too? There are indirect workers like supervisors, like foremen, like guards. They don't have any target. How we will decide incentive for them? Second, it creates jealousy among the workers. Second, it creates jealousy among the workers. Means one who is performing better will get the incentive and it will make jealous the other people. So second, it lead to jealous among the people. And third, it will cause less coordination among the people. Means they are jealous, they will not coordinate with each other in doing the work. Clear? So these are incentive payments. What is the importance and what are the disadvantages? Next, what are type of incentive schemes? There are two type of incentive schemes: individual schemes and group schemes. As the name indicate, individual schemes are the schemes which are for the whole organization. Individual scheme means which are for the individual employees in the organization. Means the person who is doing better will get the payment, more payment as compared to the others. And group schemes which are for the groups, maybe the group department, maybe the team, and maybe the whole organization. So there are two type of schemes: individual schemes and group schemes. Depending upon the type of work, depending upon the type of organization, and depending upon the individual we have, we can choose the schemes. There are two type of schemes. Clear? Individual schemes and group schemes. First, we will continue with the group schemes. Group schemes are divided into four categories. Group schemes are divided into four categories.
as in comparison to the output, as in comparison to the output. किस बेस पे डिवाइड करते हैं? अर्निंग इक्वल टू आउटपुट, अर्निंग इक्वल टू आउटपुट मीन्स जो आउटपुट आप हमें दे रहे हैं उस आउटपुट के बेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे दैट व्हाट विल बी द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉयज या व्हाट विल बी द इंसेंटिव पेमेंट फॉर द एम्प्लॉयज. देयर आर 4 ग्रुप्स. फर्स्ट, अर्निंग इन द सेम proportion. First, earning in the same proportion as the output means जितना आप आउटपुट देंगे उतनी अर्निंग आपको हो जाएगी. सेम प्रोपोर्शन इक्वल टू अर्निंग इन द सेम प्रोपोर्शन एज आउटपुट. क्लियर? वेरी लेस प्रोपोर्शन देन द आउटपुट. वेरी लेस मीन्स there are more increase in the output as compared to the increase in the salary. मीन्स आउटपुट आपने 100 बढ़ाया तो सैलरी आपकी 50 बढ़ेगी. आउटपुट आपने 150 बढ़ाया तो सैलरी आपकी 70 बढ़ेगी. तो ये तो आपका 100 से 150 होगा, लेकिन ये 50 से 70 हुआ. तो यहाँ पे डिफरेंस है 50 का, यहाँ पे डिफरेंस है 20 का. तो दैट आर वेरी लेस प्रोपोर्शनली देन द आउटपुट. मीन्स आउटपुट जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस स्पीड से सैलरी नहीं बढ़ती है. क्लियर? एंड दिस इज वेरी मोर प्रोपोर्शनली देन द आउटपुट. आउटपुट आप जितना बढ़ा रहे हैं उसके कंपैरिजन में सैलरी हम आपको ज्यादा दे रहे हैं. उस कंपैरिजन में सैलरी नहीं, इंसेंटिव हम आपको ज्यादा दे रहे हैं. वेरी मोर प्रोपोर्शनली देन आउटपुट. एंड जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज डिफरेंशियल रेट सिस्टम. डिफरेंट वर्कर्स, डिफरेंट आउटपुट्स हैव डिफरेंट रेट. मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम तक आपको सेम रेट मिलेगा, उसके बाद अगर आप ज्यादा कुछ दोगे तो आपको अलग अलग रेट जो है उसका मिलता रहेगा. तो देयर आर 4 सिस्टम. सेम प्रोपोर्शन एज आउटपुट, लेस प्रोपोर्शन देन आउटपुट, more proportional than output, and differential rate system for different output. Differential rate system for different output. Clear? So these are the 4 system in individual systems, and this is the oldest and easiest system. This is the oldest and easiest system. सबसे पुराना और सबसे आसान सिस्टम है स्टेट पीस. आपने 100 पीस बनाए, आपको 100 रुपए का इंसेंटिव मिल गया. आपने 50 पीस बनाए, आपको 50 रुपए का इंसेंटिव मिल गया. तो दैट इज स्टेट पीस. मीन्स द रेट पर पीस इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट एंड द इंसेंटिव इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीसेस you have done in one day. Clear? State hour, the time taken by the individual in doing a particular job. जितना टाइम आप उसको करने में लगाओगे उतनी सैलरी या उतना बेनिफिट आपको दे दिया जाएगा. These are the oldest and most easiest system जो हम इसके लिए यूज करते हैं एंड आउटपुट के अकॉर्डिंग डायरेक्टली जो है यूज किया जाता है. मीन्स मान लीजिए एक काम है जो 10 घंटे में होना है. ठीक है? एक काम जो 10 घंटे में होना है, आप 10 घंटे में करोगे तो भी उतनी पेमेंट मिलेगी, आप 8 घंटे में करोगे तो भी उतनी पेमेंट मिलेगी, और आप 12 घंटे में करोगे तो भी उतनी पेमेंट मिलेगी. लेकिन फायदा क्या होगा? आपने 8 घंटे में कर दिया, आपके 2 घंटे बच गए. आपने 12 घंटे में कर दिया, आपके 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे, लेकिन सैलरी जो है आपको, पेमेंट जो है आपको उतनी ही मिल रही है. तो दैट इज स्टैंडर्ड आवर सिस्टम एंड स्टैंडर्ड पीस सिस्टम. सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा पुराने टाइम में हम यही यूज करते थे. लेकिन आजकल क्या है कि एम्प्लॉय जो है पर पीस रेट के हिसाब से या पर पीस के हिसाब से हम डिसाइड नहीं करते. तो ये सिस्टम अब जो है कम यूज होता है. नेक्स्ट, very less proportionally than the output. This is also known as gain sharing scheme. This is also known as gain sharing scheme. Why it is gain sharing? Because both are gaining in this. Because both are gaining in this. Workers and employer. Workers and employer both. Like means यहाँ पे workers, employees का तो है जैसे 100 से हमने भी 50 बढ़ा दिया, तो एम्प्लॉइज को 50 का बेनिफिट हुआ, उसमें से उसने 20 का बेनिफिट वर्कर को दे दिया. तो वर्कर को मिला 20 और एम्प्लॉय को मिला, एम्प्लॉयर को मिला 30. तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज गेन शेयरिंग सिस्टम. मींस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ आर गेनिंग इन दिस सिस्टम. आपका आउटपुट ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन हम उसका इंसेंटिव कम दे रहे हैं, लेकिन दे जरूर रहे हैं. तो दैट इज गेन शेयरिंग सिस्टम. इसमें 3-4 सिस्टम आते हैं: हास्ले प्लान, रोवान प्लान, बार्थ एंड बुडेक्स. 4 plans:
Hasley plan, Rowan plan, Barth and Budek's plan. Hasley, Rowan, Budek's and Barth. Clear? And all these systems are on the basis of time. All these systems are based on the time. Based on the time means standard time fixed किया गया है. Standard time is fixed for the job and your performance is checking against the time you have taken for completing that job. Clear? टाइम फिक्स कर दिया कि एक जॉब, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि एक जॉब जो 10 घंटे में हो रही है, हमने उसका टाइम फिक्स कर दिया और उस जॉब को आप कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर रहे हो, उस टाइम के बेसिस के हिसाब से आपको इंसेंटिव जो है डिसाइड कर दिया जाएगा. उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका इंसेंटिव जो है डिसाइड कर दिया जाएगा. तो दैट इज नोन एज लेस प्रोपोर्शनल देन द आउटपुट एंड गेन शेयरिंग स्केल्स. और कितना हमने उसको देना है वो जो है इन प्लान्स में अलग अलग है. जैसे हास्ले जो है, हास्ले कह रहा है कि द बोनस इज 30 and 70%. The usual share is 50%, remaining going to the employer. मीन्स जितना आपने टाइम बचाया है उसका हम 1/2 कर देंगे. मतलब मान लीजिए आपने 2 घंटे बचाए तो 2 into 1/2 तो आपको 1 रुपए का बोनस मिलेगा. तो यहाँ पे 50% मीन्स 50% of the time saved by the worker. 50% of the time saved by the workers. And नेक्स्ट जो है उसमें आपने जितना टाइम बचाया है उसका जो है 1/10 हो जाता है. जितना टाइम आपने सेव किया है, जितना टाइम आपका लगना चाहिए था उसका 1/10 हम इसमें रोवान प्लान में करते हैं. बट बार्थ प्लान में क्या होता है कि बोथ द स्टैंडर्ड टाइम एंड द टाइम टेकन इज मल्टीप्लाइड एंड स्क्वायर रूट इज टेकन एंड उस स्क्वायर रूट के बेस पे की जो अमाउंट आती है वो उसके लिए जो है उसको पे कर दी जाती है. क्लियर? जैसे 10 घंटे का टाइम था, आपने 10 ही लगाए तो 10 into 10 तो 10 रुपीज आपको मिल जाएंगे. 8 घंटे लगाए 10 into 8 80, 10 into 8 अगर मान लीजिए आपने 8 आवर्स लगाए तो 8 आवर्स में आपको 8.94 मिल जाएंगे. मतलब 8 घंटे में आपको हम 9 आवर्स के लगभग की पेमेंट दे रहे हैं. और जितना आप ज्यादा टाइम लगाते जाते हैं उसके या कम टाइम लगाते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पेमेंट हो जाती है. दैट इज बार्थ प्लान. बुडेक्स प्लान सिंपली हम एक जॉब को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उस जॉब के अकॉर्डिंग उसमें पॉइंट्स डिसाइड होते हैं और उन पॉइंट्स के बेस के ऊपर आपको जो है पे कर दिया जाता है. क्लियर? तो दीज आर लेस प्रोपोर्शनल देन द आउटपुट, देन वेरी मोर प्रोपोर्शनल देन द आउटपुट. जितना आप आउटपुट दे रहे हैं उससे ज्यादा हम आपको बोनस देते हैं. फर्स्ट इज हाई रेट सिस्टम. ये दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस. फर्स्ट स्टेट रेट सिस्टम, वहां पे है हाई पीस सिस्टम, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर और वहां पे है हाई स्टैंडर्ड आवर. क्लियर? हाई पीस सिस्टम. The earning of the worker in proportion to the state piece worker, but increment earning for each unit of output of the standard is greater. Means यहाँ पे क्या था कि आप 1 यूनिट बना रहे हो आपको 1 रुपया दिया जा रहा है. वहाँ पे आपने 1 यूनिट ज्यादा बना दी तो उसका हम 4/3 आपको दे देंगे. ठीक है? 1 यूनिट आपने एक्स्ट्रा बना दिया तो उसको 4/3 जो है आपको पे कर दिया जाएगा. अगर 4/3 आपको पे दिया जा रहा है तो वर्कर्स के एम्प्लॉय के पास कितना बचा? 1/3. तो आपको जो है ज्यादा पे किया जा रहा है. तो दैट इज हाई पीस सिस्टम. एंड इसी तरह से होता है हाई स्टैंडर्ड आवर में कि जितना आपने टाइम कम हमारा बचाया है उतना हम आपको जो है उसके अकॉर्डिंग पे कर देंगे. इनका एडवांटेज क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज फॉर द आउटपुट अबव द स्टैंडर्ड. वर्कर्स आल्सो शेयर्स द अर्निंग इन ओवरहेड कॉस्ट विच रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज आउटपुट. आउटपुट से जो आपका ओवरहेड कॉस्ट बच रहा है उसमें से भी वर्कर्स को जो है शेयर करते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंशियल रेट सिस्टम. डिफरेंशियल रेट सिस्टम सबसे पहले टेलर ने शुरू किया था कि देयर शुड बी डिफरेंट वेज फॉर द डिफरेंट वर्कर्स.
means the high efficient worker should be paid more than the low efficient worker. और इसी के ऊपर ये काम करता है डिफरेंशियल रेट सिस्टम, मीन्स एक लिमिट तक हम सबको सेम रखते हैं और उसके बाद जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है आपकी सैलरी और आपका इंसेंटिव जो है बढ़ता जाएगा और उसको जो है हम डिफरेंशियल वेज सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। इसमें 4 सिस्टम्स हैं, टेलर्स डिफरेंशियल रेट सिस्टम, मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, एमर्सन प्लान एंड गैंट टास्क सिस्टम एंड ये उसी के ऊपर जो है काम करते हैं कि जितना टाइम आप बचा रहे हो उस टाइम के बेस के ऊपर हम आपको जो है आपका इंसेंटिव जो है पे कर दिया जाएगा। तो हम स्टैंडर्ड there is a low rate for output below the standard and high piece rate for the output above the standard with a large 50% of the time rate when the standard output is attained। मान लीजिए आउटपुट आपका